تعلیم کے میدان سے ٹوبہ کی عوام کے لیے بڑی خبر، زرعی یونیورسٹی سب کیمپس ٹوبہ کو یونیورسٹی بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیراعظم عمران خان سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی ملاقات میں اہم فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے یونیورسٹی کے قیام کے لیے تمام فنڈز گورنر پنجاب چودھری سرور کی ٹوبہ میں یونیورسٹی کے قیام کی محنت رنگ لے آئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں گورنر پنجاب نے ٹوبہ میں یونیورسٹی کے قیام کی درخواست کی، جس پر وزیر اعظم نے زرعی یونیورسٹی آف فیصل آباد کے سب کیمپس کو ٹوبہ یونیورسٹی بنانے کی منظوری دے دی، جبکہ پنجاب حکومت کو یونیورسٹی کے قیام کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ زرعی یونیورسٹی کے سب کیمپس میں اس وقت 20 کے قریب ڈگری پروگرامز جاری ہیں، جبکہ یونیورسٹی کے قیام سے 100 کے قریب ڈگری پروگرامز شروع ہو جائیں گے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ٹوبہ کے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ یونیورسٹی کی منظوری پر وزیر اعظم عمران خان کا مشکور ہوں۔ کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ تعلیم کے میدان سے اچھی خبر، شورکوٹ میں طالبات کے لیے بنایا گیا نیا پرائمری اسکول، جبکہ 18 ہزاری گرلز ہائی اسکول کو ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ مل گیا۔ حکومت پنجاب نے محکمہ تعلیم کے منصوبوں کے لیے 5 کروڑ 80 لاکھ کے فنڈز منظور کر لیے۔ جنگ میں تعلیم کے میدان سے اچھی خبر ہے کہ 5 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت سے نئے اسکول بنیں گے۔ نئے منصوبے میں تحصیل شورکوٹ کی بستی رشید آباد میں لڑکیوں کا پرائمری اسکول بنے گا۔ تحصیل 18 ہزاری کے قصبے روڈ سلطان کے گرلز ہائی اسکول کو ہائی سیکنڈری اسکول بنا دیا گیا۔ اسکیم کے تحت ایجوکیشن کمپلیکس میں کانفرنس اور میٹنگ روم بنایا جائے گا۔ یونین کونسل نمبر 1 جنگ کے گرلز اور بوائز اسکول میں 4 دیواری اور واش روم کی سہولت فراہم ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویا کا کہنا ہے کہ منظور شدہ فنڈ سے اپ گریڈ کیے اسکولوں میں نئے کمرہ جماعت بنیں گے۔ حکومت پنجاب نے تمام اسکیموں کے لیے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے جاری بھی کر دیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دسمبر تک تمام فنڈز کو استعمال کر کے آئندہ بجٹ کی ڈیمانڈ کریں گے۔ فیصل آباد میں آٹے کے نئے بحران کے خدشات، رجسٹرڈ چکیوں کو دیا جانے والا سرکاری گندم کا کوٹا بند کر دیا گیا۔ محکمہ خوراک یومیہ 500 کلو گندم گلی محلے میں لگی چکیوں کو فراہم کر رہا تھا۔ فیصل آباد چکی ایسوسی ایشن نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ محمد رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد میں آٹے کی قیمتیں پھر سے بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ خوراک نے آٹا چکیوں کو گندم کی فراہمی بند کر دی۔ مہنگی گندم خرید کر چکی مالکان مہنگے داموں آٹا فروخت کریں گے۔ ہمیں 5 بیگ پر ڈے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کابینہ میں پاس کیا کوٹا ڈیلی بیسس پہ ریلیز ہوتا تھا، ہم اس کو گودام سے اٹھا کے سرکاری ریٹ پہ جو ہمارا ان سے طے ہوا ہے 62 روپے مارکیٹ میں اس کی سپلائی کرتے تھے۔ ہم کل صبح جب دفتر گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا کوٹا ADCR خالد گجر اور DFC کی ساز باز سے بند کر دیا ہے، جس سے آٹے کا ریٹ اسی دن مہنگا ہو گیا۔ گندم نہ ملنے سے چکی کا کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچنے لگا ہے۔ چکی مالکان نے ضلع کونسل چوک میں علامتی احتجاج کیا کہ مالکان نے الزام عائد کیا کہ ملز مالکان کو نوازا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں 10 تھیلے بھی نہیں دیے جا رہے۔ محکمہ خوراک انتظامیہ کے مطابق چکی مالکان سستی گندم لے کر مہنگا آٹا دیتے ہیں، جس کے باعث گندم کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ کیمرامین محمد وکاس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج چنیوٹ میں بھی اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی۔ ممبر صوبائی اسمبلی مولانا الیاس چنیوٹی، امیدوار PP 95 سید اسد بخاری اور PDM جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان نے ریلی نکالی اور حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ بابر منیر کی رپورٹ دیکھیے۔ PDM کی کال پر مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری ہے۔ چنیوٹ میں بھی لگی MPA مولانا الیاس چنیوٹی، امیدوار PP 95 سید اسد بخاری، یوتھ ونگ، PDM جماعتوں کے کارکنان و قائدین نے احتجاجی ریلی نکالی اور نعرے بازی کی۔ بینرز اور پینافلیکس اٹھائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں نے عوام کو زندہ درگور کر دیا۔ غریب تو کیا متوسط طبقہ کی پہنچ سے 1-2 ٹائم کی روٹی مہیا کرنا اپنے بچوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے، اس کے پاس کوئی تجربہ کار ٹیم نہیں ہے، جس وجہ سے آئے روز جو قرضوں پر قرضے، جتنے قرضے پچھلی سابقہ حکومتوں نے 70 سال میں لیے ہیں، اس سے بڑھ کر انہوں نے 3 سال میں قرضے لے لیے ہیں۔ آج کی احتجاجی ریلی جو ہے یہ کرپٹ حکومت اور نااہل حکومت کے خلاف ہے، اور ہم نے اب یہ دل سے طے کر لیا ہے کہ جب تک اس کرپٹ حکومت نااہل حکومت کو گھر نہیں بھیجتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ریلی میں مسلم لیگ نون سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے کارکن اور شہری شریک ہوئے۔ گڑا چوک سے نکلنے والی احتجاجی ریلی ختم میں وہ چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔
मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीडीएम सड़कों पर आ गई। जंग में भी अपोजिशन जमातें मंगल को हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करेंगी। पीडीएम जमातों ने कारकुनान को मुतहरिक करने का काम शुरू कर दिया है। जंग में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इकट्ठ मंगल को होगा। मुस्लिम लीग नून, जमात उलमा इस्लाम और दीगर जमातें भी शिरकत करेंगी। 26 अक्टूबर बरोज़ मंगल 10 बजे प्रेस क्लब के सामने पीडीएम की तमाम जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फजल रहमान ग्रुप, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान, जमात इस्लामी, प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस ऑनर एसोसिएशन, उसके बाद लेबर मूवमेंट, फिर रिक्शा यूनियन और नंबर ऑफ दूसरी तंजीमें जैसे जंग डिवीजन बनाओ तहरीक, ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। जंग की तारीख में इतना बड़ा इंशाल्लाह एहतजाजी रैली कभी नहीं निकली होगी। और जिस तरीके से आज अवाम बेबस है, परेशान है, अब देखिए ना जी, चोरों की बात करते रियासत फैसलाबाद के सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद की रिहाइशगाह पर लीगी रहनुमाओं की बैठक। मीटिंग में लीगी अराकीन समेत टिकट होल्डर्स और अहदेदारान ने शिरकत की। महंगाई के खिलाफ इतवार के रोज एहतजाज का ऐलान कर दिया। तमाम अराकीन और मेंबरान शामिल होंगे। वाहद दौर है पाकिस्तान की 72 साल तारीख का कि जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोई गरीब लोग जो हैं इससे अफेक्ट हैं या मजदूर परेशान हैं। ये रेडी बांध से लेके, छाबड़ी वाले से लेके, मजदूर से लेके और पाकिस्तान के मिल ऑनर तक तमाम लोग परेशान हैं। और जिला काउंसिल से लेकर हमने घंटा घर जाना है और उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारी जितनी भी झैली विंग्स हैं, हमारी जिसमें ख़वातीन विंग्स हैं, लेबर विंग है, लायर विंग है, यूथ विंग है और हमारी MSF है, उलमा विंग है, ये तमाम विंग्स जो हैं ये अल्लाह की फजल करम से ये भी। बढ़ती महंगाई और बेजा टैक्सेस के खिलाफ मजदूर मुतहरिक हो गए। फैसलाबाद में ताजर मजदूर इंडस्ट्री इत्तेहाद के लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से महंगाई खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का बोले, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। मजीद जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। टैक्सीज और महंगाई की हालिया सूरत हाल के खिलाफ ताजर इंडस्ट्री मजदूर इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताजर रहनुमा ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने कहा कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी चैलेंज बन चुका है। हमारा ताल्लुक सिर्फ आवाम के साथ, ताजरों के साथ, मजदूरों के साथ और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है। हमारे अंदर आपने देखा है कि मुख्तलिफ जमातों के बंदे भी बैठे हुए हैं, मगर जब इस प्लेटफॉर्म पे आना है वो अपनी एफिलेशन जो एक साइड पर रख देनी है हमने, और जो मुल्क और कौम के मफाद के लिए बेहतर होगा, मजदूरों के लिए बेहतर होगा और बाकी ताजरों के लिए, इंडस्ट्रीज के बेहतर होगा, वो इक़दाम हमने उठाना है। मजदूरों की नुमाइंदा जमात LQM के सदर बाबा लतीफ का कहना था कि मजदूरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ताजरों के साथ मिलकर 27 अक्टूबर को जिला कौंसिल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इस वक्त सूरत हाल गुर्बत में इतना ज्यादा इजाफा है कि आप रोडों के ऊपर देख लें, एक आधा बंदा मांगने वाला खड़ा होता था, अब 10-10 खड़े होते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं। उसकी वजह क्या है कि लोगों के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है। और जितने मैं समझता हूं कि हमारे MNA MPA साहबान हैं, वो सब अच्छा की अगर रिपोर्ट दे रहे हैं, वो समझ लें कि वो भी खुदा के देनदार होंगे। वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। हम समझते हैं कि अगर सही काम हो रहा है तो फिर उसको सही कहना चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो उसकी निशानदेही जरूर करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइजिंग पावर लूम्स और ताजरों समेत मजदूर रहनुमा शरीक हुए और हुकूमत से बढ़ती महंगाई पर नजरसानी करने की दरख्वास्त की। कैमरामैन अली हसन के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नया टैक्स लगाने की तैयारियां। शाहराहों और मोटरवेज पर वाक़ जायदादों से टैक्स वसूली इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए। नए टैक्स गुजारों से सालाना 10 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का तखमीना लगाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नया टैक्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हाईवे टैक्स के लिए मोटरवेज और शाहराहों पर वाक़ जायदादों का सर्वे और मुकम्मल कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एक्साइज हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के आगाज से हुकूमत ने मोटरवेज और शाहराहों पर मौजूद अमारात पर नया टैक्स लगाया था। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा न होने पर पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। महकमा सेहत की टीमें 25 अक्टूबर से घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। उधर जिला इंतजामिया फैसलाबाद ने शोबा ट्रांसपोर्ट में कोरोना वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग के लिए टीम्स तश्कील दे दी हैं। मोटरवे के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर अमल दरामद के लिए 12 टीम्स काम करेंगी।
पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए बड़ा फैसला किया है। जंग समेत सूबा पंजाब में वैक्सीनेशन के लिए रेड मुहिम चलाई जाएगी। रीच एवरी डोर के नाम से चलाई जाने वाली ये मुहिम 25 अक्टूबर से शुरू होकर 12 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके लिए महकमे सेहत जंग ने 255 अफराद पर मुश्तमिल टीम भी तश्कील दे दी है, जो घर जाकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। हुकूमत पंजाब ने मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आरजी मुलाजमीन की भर्ती और अखराजात की इजाजत भी दे दी। हेल्थ काउंसिल के फंड से अखराजात किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को मौसर करने के लिए फैसलाबाद इंतजामिया ने शोबा ट्रांसपोर्ट में वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी। टीम मोटरवे से उतरने वाली और जाने वाली गाड़ियों में सवार मुसाफिरों की वैक्सीनेशन चेक करेगी। इन टीमों में जिला इंतजामिया, पुलिस, नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और मीडिया नुमाइंदगान शामिल हैं। टीमों के जरिए साइयावाला इंटरचेंज, दाखिली खारजी पॉइंट, डेप्टी वाला इंटरचेंज, कमालपुर इंटरचेंज, अमीनपुर बंगला, समुद्री और जरावाला इंटरचेंज पर हर किस्म की व्हीकल्स को चेक करके वैक्सीनेशन रिपोर्ट मुरतब हो सकेगी। वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद की मौके पर मोबाइल वैक्सीनेशन टीम के जरिए वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के बाद थमने के बावजूद फैसलाबाद में टीचिंग अस्पतालों के ENT वार्ड्स 5 माह से गैर फाल हैं। नाक, कान, गला के मरीज इलाज के लिए खाल होने लगे। मुतासरा मरीज दाखिल होने से महरूम हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आजादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के सबब अस्पतालों में नाक, कान, गला के वार्ड कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए गए थे। कोरोना केसेस में कमी के बावजूद अलाइड और DHQ अस्पताल में नाक और कान, गले के वार्ड फाल नहीं किए जा सके। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं हुकूमत वार्ड फाल बनाए और मरीजों को दाखिल करके इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करे। कोरोना वार्ड जो है ना, ENT वार्ड है, उसमें कोरोना के पेशेंट जो है सारे शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारा मसला हो रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि ये जो ENT है वार्ड उसको खोला जाए ताकि लोग बआसानी अपने ऑपरेट करवा सकें। इस मसले पर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि कोरोना मरीजों का इलाज अव्वलीन तरजीह है। ENT वार्ड में कोरोना मरीज जिले इलाज हैं। नाक, कान, गले के सीरियस मरीजों को इलाज मुआवजा फराहम कर रहे हैं। 1 से 2 रोज में अलाइड और DHQ अस्पताल में ENT वार्ड फाल कर दिए जाएंगे। हमारे पास जो आइसोलेशन वार्ड है जो हमने बनाई हुई है इन बीमारियों के लिए, वहाँ पे हमारे पास 20-25 बेड होते हैं। तो इन पेशेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें दूसरे वार्ड जो थे उनको शामिल करना पड़ा कोरोना के पेशेंट्स की मैनेजमेंट के लिए। और अब जो वार्ड हमने लिए थे जिसमें हमने कोरोना के पेशेंट्स रखे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हम उन वार्डों को खाली करा के दोबारा उन्हीं शोबों को दे रहे हैं। अलाइड और DHQ अस्पताल में तकरीबन 5 माह से ENT वार्ड बंद है। टीचिंग अस्पतालों में नाक, कान, गले के इलाज की सहूलियात न मिलने पर मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। आराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम पेशरफ फर्द और इंतकाल के लिए यूनिवर्सल रसाई देने का फैसला कर लिया गया। पंजाब भर में कहीं से भी डॉक्यूमेंट का इजरा मुमकिन हो सकेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। आराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से ये अहम पेशरफ सामने आई है। पंजाब भर में कहीं से भी डॉक्यूमेंट का इजरा अब मुमकिन हो सकेगा। अब फर्द के हसूल के लिए होम टाउन जाने की जरूरत नहीं होगी। शहरी शनाख्ती कार्ड रखवा कर पंजाब भर से रेवेन्यू मामलात की सर्विस हासिल कर सकेंगे। सानहा जामपुर झंग में पटवारियों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। सरकारी अमूर ठप होने से साइलिन खार होकर रह गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। जामपुर में जाम बहक होने वाले पटवारी से इजहार यकजहती के लिए झंग में हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। अंजुमन पटवारियों जिला झंग के सदर मुजफ्फर अब्बास का कहना था कि जामपुर के पटवारी वसीम अब्बास से मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर और अमले ने नारवा सलूक किया। महकमा तालीम ने असातिज़ा के ऑनलाइन तबादलों के शेड्यूल को नजरअंदाज कर दिया। असातिज़ा को जुलाई से हर तीसरे माह तबादलों की सहूलत देने का वादा किया गया था, लेकिन 4 माह बाद भी तबादलों से पाबंदी ना हटाई जा सकी। असातिज़ा के तबादलों के लिए महकमा तालीम की तरफ से ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली शुरू ना हो सकी। शेड्यूल के मुताबिक जुलाई में ओपन तबादले हुए, जबकि 4 माह गुजरने के बावजूद ताहाल असातिज़ा के तबादलों के लिए दरखास्तें तलब नहीं की जा सकी, जिसके बायस टीचर्स करीब के स्कूलों में ट्रांसफर करने से महरूम हैं। फैसलाबाद इंतजामिया की संगीन गफलत, गटरों के ढक्कन चोरी होने का सिलसिला थम न सका। शेखुपुरा रोड, DC ऑफिस रोड और मुल्हिका इलाकों से ढक्कन चोरी होने लगे। कई एक टूट फूट का शिकार हैं। खुले गटर और मैनहोल मौत को दावत देने लगे हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए।
शहर की अहम शाहराहों से गटरों के ढक्कन चोरी और टूट फूट का शिकार हैं। साहिल अस्पताल और क्रिसेंट स्कूल शेखपुरा रोड से गटरों के ढक्कन भी गायब हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ये इंतहाई खतरनाक है। आए दिन कोई ना कोई इंसान गिरता है यहाँ पे, क्योंकि आप इस रोड पे चले जाएं और जाके देखें कितने ढक्कन चोरी हुए हैं। इंतजामिया को इतनी कंप्लेन करते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे जैसे नशा करके सोई हुई है। नरवाला रोड से भी मैन होल के ढक्कन गायब, माल रोड, जेल रोड, संसिंग रोड से भी ढक्कन चोरी हो गए। निशाताबाद, तारकाबाद, मिल्लत रोड और मिल्लत टाउन से भी मैन होल के ढक्कन गायब हैं, जबकि डीसी ऑफिस रोड, जड़ामाला रोड और सत्याना रोड पर भी ढक्कन नहीं लग सके। जरूरत इस अमर की है कि अहम शाहराहों के ऊपर गायब गटरों के ढक्कन को फौरी तौर पर लगाया जाए, ताकि हादसा से बचा जा सके और इंसानी जिंदगी भी महफूज रह सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन चिन्योटी रोड के हालत ना बदल सकी। चिन्योट में फर्नीचर बनाने के घर चिन्योटी रोड हुकूमती तवज्जो से महरूम। सड़क की खस्ता हाली के बायस ताजिर और अवाम दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखिए वकार घुमन की ये रिपोर्ट। चिन्योट में जिला इंतजामिया शाहराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा दिखाई देती है। फर्नीचर बनाने के गढ़ चिन्योटी रोड पर तवज्जो न होने से रहना और गुजरना मुहाल हो गया। सड़क पर पड़ने वाले गड़े खौफ की इलामत बन गए हैं, जबकि ट्रैफिक हादसात में इजाफे का भी बायस बन रहे हैं। बड़े अरसे से ये रोड खराब है। इस रोड की हालत आप देख रहे हैं, बड़ी अरसे से ये रोड खराब है। जब यहाँ बारिश हो जाती है तो यहाँ 2-2 फुट का पानी खड़ा हो जाता है। कारोबार करने से भी हम कासिर हैं, बिल्कुल यहाँ कारोबार भी हम नहीं कर सकते। चिन्योटी रोड की खस्ता हाली से ताजिर और रिहायशी दोनों ही परेशान हैं। फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों का कहना है कि रोड की मुरम्मत न होने से फर्नीचर साजी की सनत तबाह हो रही है। आते हैं तो मुश्किल होती है उनको, तो इसके लिए अपील यही है हुकूमत से, अगर ये कर सकती है तो करे। ये 2-3 फुट इधर पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो बराए मेहरबानी ये हुकूमत से अपील है कि इसका कोई सोचें। शहरियों का कहना है कि बड़ी शाहराहों समेत चिन्योटी रोड की हालत जार को भी बेहतर किया जाए, ताकि फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। टोबा टैक्सिंग की आवाम के लिए अच्छी खबर। इंतजामिया का इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम कदम। चटियाना में नया रेस्क्यू स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल गई। नई इमारत की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। एमरजेंसी की सूरत से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इकदाम। चटियाना में नया रेस्क्यू स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी गई। नई इमारत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनेगी। मंसूबा 9 माह में पाया तकमील तक पहुंचकर आवाम को सहूलियात मुहैया करेगा। एमपीए सईद अहमद सईदी कहते हैं कि इस मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब से खसूसी तौर पर दरखास्त दी गई थी। आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू का जो मंसूबा अप्रूव्ड हो चुका है, जिस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको ये पहले भी बात की है, तकरीबन 17-18 के करीब हमारे मंसूबा जात हैं जो हैवी अमाउंट के हैं, जो कि तहसील टोबा टैक्सिंग PP 121 में होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 2 और चेक पोस्ट, जिसमें 1122 की चेक पोस्ट 388 का अब है, और रजाना सेंटर के लिए भी अप्रूव हो चुकी हैं। इंशाल्लाह वो उस पर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू मियां फराज मुनीर का कहना है कि मंसूबे से लोगों को रेस्क्यू की बेहतर सहूलियात मुहैया हो सकेंगी। चटियाना टोबा शहर से 18 किलोमीटर दूर होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में देर लगती है। टोबा टैक्सिंग से जो हमारा जिस चटियाना थाने की आप बात कर रहे हैं रेस्क्यू स्टेशन की, वो हमारा यहाँ से डिस्टेंस को 18 किलोमीटर का फासला है, जो कि एक सिंगल रोड है रेलवे लाइन के साथ साथ, जिस पे हमारी जो इमरजेंसी RTS रेशियो तकरीबन 15% थी मंथली। शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए ऐसे मंसूबों की टोबा की आवाम के लिए अशद जरूर करार दे दिया। सड़कों पर बढ़ते हुए हादसात के पेश नजर हुकूमत की जानब से चटियाना मरकज को एक नया रेस्क्यू स्टेशन मुहैया किया गया है। चटियाना मरकज के मुल्हिका 2.5 लाख से जायद आबादी को अब बर वक्त सहूलियात मुहैया हो सकेंगी। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। ट्रैफिक हादसात में मुलव्विस गैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां पुलिस तफ्तीश में मसाइल पैदा करने लगी। ट्रैफिक पुलिस ने अप्लाइड 4 गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। गुज़श्ता 18 घंटों के दौरान 300 से जायद गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। हादसे के बाद फरार होने वाले मोटरसाइकिल और कार सवार होने के बायस बच निकले हैं। ट्रैफिक पुलिस ने हादसात में मुसलसल इजाफे के बाद अप्लाइड 4 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर 300 से ज़ायद अप्लाइड 4 मोटरसाइकिल्स और कारें बंद कर दी गई हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सीटीओ की जानिब से शहरियों से इस्तदा की गई है कि अपनी गाड़ियों की जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि मुश्किल सूरत हाल से बच सकें। चनियोट खेलों की सरगर्मियों से महरूम 12 साल बाद भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर न हो सकी। साबका दौरे हुकूमत में 14 करोड़ रुपए जारी हुए। इंतजामिया की लापरवाही के बायस कॉम्प्लेक्स की जगह मुंतखब न हो सकी। चनियोट में 12 साल बाद भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना बन सका। साबका दौरे हुकूमत में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया को 14 करोड़ रुपए के फंड्स का इजरा किया गया, जबकि जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की गफलत के बायस जगह का इंतखाब ना होने पर फंड्स वापस हो गए। हमें सरकारी तौर पर कोई भी ग्राउंड नहीं मिला चनियोट में ना। जब भी हमारा कोई मैच होता है हमें बाहरले शहर जाना पड़ता है, हमें बहुत बड़ी दुश्वारी पेश आती है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हमें सरकारी तौर पे कोई यहाँ पे ग्राउंड मिला जाए। चनियोट में सरकारी सतह पर ग्राउंड ना होने से खिलाड़ी गंदगी और ताफुन ज़्यादा माहौल में खेलने पर मजबूर हैं। जिला सदर क्रिकेट एसोसिएशन मलिक अरशद का कहना है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ना बनना हुकूमत और जिला इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। 2009 में चनियोट जिला बना, उस दिन से लेकर आज तक 2022 आ रहा है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, ना तो हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड है, ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। कितनी दफा हमने आवाज उठाई है, कोई फंड आता है तो वो भी चला जाता है हमारा। खिलाड़ियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समेत खेलों की तमाम सहूलियात फराहम की जाएं ताकि वो खेलों में मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर, कलियार सिटी 41 चनियोट। चिन्योट में म्यूनिसिपल कारपोरेशन अफसरान की हठधर्मी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मोहल्ला गफूराबाद के सीवरेज के सताए मकीन शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मकीनों का कहना है कि करोड़ों रुपए के फंड के बावजूद एमसी अफसरान 2 हफ्तों से सीवरेज निकासी के लिए पाइप नहीं खरीद रहे। घरों में पानी दाखिल होने से बुनियादें खोखली और कमजोर हो रही हैं। पिछले 3 हफ्ते से हम बार बार कमेटी घर में जा रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। हमें लारा लगा देते हैं, हमारे पास पैप नहीं है, 2-3 दिन निकालो हम आ जाएंगे, मशीन भेज रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा। हमारी ताज मस्जिद है वो यानी कि उसमें नमाज पढ़ने नहीं जा रहे। मल्ले की हर गमी खुशी से हम मजबूर हैं। पिछले 3 हफ्तों से ये रोड मुसलसल खराबी का शिकार है। पानी इधर इतना खड़ा रहता है कि लोग गुजरने से कासर हैं। ठीक है, इधर ताज मस्जिद है, नमाजी खुद घर में नमाज पढ़ रहे हैं, लिहाजा ये तो इतना मसला भी नहीं है। लारे लगा रहे हैं, कहते हैं पैप डालेंगे, इसको ऐसे करेंगे। मशीन एक दफ़ा आई है, इधर दुकानें हमारी जो है ना बंद पड़ी हैं। इंतहाई मजदूर हमारे पास वो भी छुट्टी कर रहे हैं, हम भी बड़े परेशान हैं। मकीनों का मजीद कहना था कि सीवरेज के बायस घरों में महसूर हैं। मुतअद्दिद दरखास्तें देने के बावजूद अफसरान बात नहीं सुनते। अरबाब इख्तियार नोटिस लेकर सीवरेज की निकासी का मसला हल करवाएं। एमसी अफसरान की मामूली सी गफलत और लापरवाही ने मोहल्ला गफूराबाद ताज मस्जिद के मकीनों को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है, जो मुतालबा कर रहे हैं कि उनके सीवरेज का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। गोजरा के 21 साला माजूर उमर फरूक ने अज़्म और हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। टांगे और हाथ ना होना भी उमर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सका। अपने ख्वाबों की ताबीर के पीछे उमर पढ़ता पढ़ाता 11वीं जमात में पहुंच गया। उमर फरूक से मिलवाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। रहमत टाउन का रहायशी 21 साला माजूर उमर फारूक अज़्म हिम्मत की मिसाल है। टांगे और हाथ ना होना भी उमर के रास्ते की रुकावट न बन सके। उमर फारूक आंखों में आर्मी ऑफिसर के ख्वाब सजाए अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। खाना खाना हो या कॉलेज का काम लिखना हो, उमर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मोबाइल फोन इस्तेमाल करना भी उमर के लिए मुश्किल नहीं। फारिग औकात में फेसबुक इस्तेमाल करना और रिसाले पढ़ना उमर का मशगला है। उमर फारूक का कहना था कि मेरी माजूरी मेरी कमजोरी नहीं ताकत है। मैंने अपनी मजदूरी को कभी कमजोरी नहीं समझा और मेरी मजदूरी मुझे हौसला बढ़ाती है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ऑफिसर बनूं, वो भी आर्मी ऑफिसर, अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमत कर सकूं और अपने मुल्क और कौम की तरक्की को आगे ले जा सकूं। उमर के अहले खाना की भरपूर सपोर्ट उमर के बुलंद हौसले का मुंह बोलता सबूत है। वालिद शाहिद फारूकी का कहना था कि उमर आर्मी ऑफिसर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। हुकूमत अगर उमर को सहूलियात दे तो उसकी जिंदगी मजीद आसान हो जाए। जबकि भाई आकाशा ने कहा कि मैंने हमेशा अपने भाई की मदद की, अपने भाई को कामयाब होता देखना चाहते हैं। दूसरे बच्चों की तरह ये पढ़ता है, सारे काम करता है, दूसरे बच्चे इनके साथ स्कूल जाता है और अब अपनी मदद कर रहा है, कॉलेज में दाखिल हो गया और ये सारे अपने काम खुद ही करता है। अपनी मजदूरी को ये मजदूरी नहीं समझता। मेरा भाई उमर है जो ये 21 साल का हो गया, तो मैं अपने से ज़्यादा इसकी केयर करता हूँ। इसको कभी मैंने स्कूल से लेट नहीं होने दिया, अकेडमी से लेट नहीं होने दिया। जब इसको स्कूल से छुट्टी होती है तो प्रॉपर टाइम पे मैं इसे वापस ले के आता हूँ। अपने से ज़्यादा इसका ख्याल किया मैंने। इसने कभी अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं समझा और मैंने समझने भी नहीं दिया इसे।
असातिज़ा भी उमर की सलाहियतों के मुतारिफ हैं। विजन कॉलेज के प्रोफेसर उस्मान का कहना है कि उमर इंतहाई ज़हीन और बासलाहियत है। दुआ है कि हर मैदान में कामयाब हो। उमर फारूक बेटा हमारे कॉलेज का एक होनहार बच्चा है, जो कि माजूरी के बावजूद इतने अच्छे नंबर लेने के बाद हमारे कॉलेज का जिसने इंतखाब किया है और इसने माजूरी को आड़े नहीं आने दिया, इंतहाई लगन से पढ़ता है। सारे टीचर जो हैं इससे सेटिस्फाइड हैं। आंखों में कामयाबी के ख्वाब सजाए उमर दुनिया भर का माजूर बच्चों के लिए पैगाम है कि अगर आपका अज़्म बुलंद हो तो सिटी 41 गोजरा। जंग में पोलियो वर्कर्स के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजिमीन में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए और आगाही वॉक में भी हिस्सा लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जंग में पोलियो के खात्मे के आलमी दिन की मुनासबत से डीसी ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास ने पोलियो मुहिम में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के स्टाफ के हमरा पोलियो आगाही वॉक में भी शिरकत की। आज का दिन हम 24 अक्टूबर के हवाले से वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है ताकि अवाम में इस बीमारी के खिलाफ एक अवेयरनेस पैदा की जाए। UN लेवल पर ये मनाई जाती है, आज हम उसको मना रहे हैं। साथ साथ हमने अपने जो डेडिकेटेड पोलियो वर्कर्स थे उनको एप्रिसिएशन के तौर पर लेटर्स भी तकसीम किए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो के खात्मे का आलमी दिन 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। पोलियो की आइंदा मुहिम दिसंबर में शुरू होगी। तमाम बच्चों को कतरे पिलाएंगे। हेल्थ की टीम्स हैं, जो हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, वैसे तो ये सारे अवाम की सेहत के साथ जुड़े हुए हैं। पोलियो कैंपेन ऐसी कैंपेन है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ जुड़ी हुई है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात देखिए जहांगीर अशरफी इस रिपोर्ट में। डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। तलबा ने सीरतुल नबी बारे मुकाले भी पेश किए। एक शख्स आपसे गुफ्तगू के दौरान में कांप रहा था। फरमाया, मुझसे क्यों डरते हो? मैं कोई बादशाह नहीं, आप तमाम लोगों से ज्यादा हकीम दाना, शुजा, मेहरबान और आदिल थे। आपसे जो कुछ मांगा जाता अता फरमाते, जमीन पर बैठकर खाना खाते और जमीन पर ही सोते, अपने जूते और कपड़े को खुद पैबंद लगाते, बकरी का दूध खुद दोहते, आजाद और गुलाम में से जो भी आपकी दावत करता कबूल फरमाते। साबिक चेयरमैन बोर्ड व मजहबी स्कॉलर डॉक्टर एजाज फारूक अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। इस्लाम ने औरत को मुआशरे में सबसे आला मकाम अता किया। अल्लाह ताला ने इंसान को तख्मीर करने का इरादा फरमाया तो वो उस वक्त हमें इल्म होना चाहिए। चेयरमैन FCC स्टैंडिंग कमेटी फॉर एडवर्टाइजिंग ख्वाजा नवीद के बेटे शहरोज नवीद की दावत वलीमा मुमताज सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन FCC स्टैंडिंग कमेटी ख्वाजा नवीद के बेटे शहरोज की दावत वलीमा का एहतमाम किनार रोड पर वाक़े मार्की में किया गया। तकरीब वलीमा में सूबाई वजीर बराए कॉलोनीज एंड सकाफत ख्याल कासरो, सूबाई वजीर बराए बैतुल माल अजमल चीमा, उम्मीदवार बराए लॉर्ड मेयर राना जाहिद महबूब, MS चिल्ड्रन हस्पताल हबीब ने भी शिरकत की। शुरका ने नौबहाता जोड़े को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया।